Hey, بہت شکریہ بس. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ہندی گانا یہ لوگ ہندی میں سنیں گے جی جی ایک دم بالکل. اور زیادہ گانا کریں گے تو بھوجپوری سنیں گے جی مگر تقریب لوگوں کو بنگالی چاہیے. جی جی یہ ڈپلیکیٹ بنگالی ہے. ہاں لیکن یہ لازمی طور پر ان لوگوں کو بولتے ہیں نا بنگلہ زیادہ اچھا سے. ہندی گانا برابر سمجھ میں آ جاتا ہے سب کو. تقریر میں دقت ہوتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ جس طرح میں بہار یا بہار کے باہر جا کر اتنی اسپیڈ سے خطاب کرتا ہوں اس میں سے کافی گراوٹ آئے گی. سمجھا کر ایک ایک بات آپ کے ذہن و دماغ پہ بٹھاؤں گا. آج کی اس تقریب میں آپ کو میں اس حد تک سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ میں سے سب بھائی بہن بیٹا بیٹی ماں باپ جتنے افراد جس حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں سب اس چیز کا قائل ہو جائے کہ آج جو ہم لوگ پریشان ہیں ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے. ایک بات کلیئر ہے کہ مسلمان جو ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو وہ پریشان نہیں ہو سکتا. صاحب ایمان جس کے پاس ایمان ہے وہ غریب ہو سکتا ہے پریشان نہیں ہو سکتا ہے. ایمان والا حیران نہیں ہو سکتا ہے. ایمان والا ہمیشہ شاد و آباد رہتا ہے. مگر آج کی تاریخ میں ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر میں سب سے زائد اگر کوئی قوم پریشان ہے تو ہم اور آپ ہیں. جی جی ایک شام آپ بتائیے بابو جس شام کو آپ کو یا ہم کو دنیا کی دوسری قوم مارنے بھگانے ڈانٹنے گاڑنے چھیڑنے کی کوشش نہیں کرتے لوگ. ہر طرح سے ہمیں برباد کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہم کو ایسی سچویشن میں ہمیں آ کر یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر ہم دنیا میں ٹارگیٹڈ کیوں ہیں. کیوں پوری دنیا مل کے ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. امریکہ ہمارے پیچھے, برطانیہ ہمارے پیچھے, اسرائیل ہمارے پیچھے, دنیا بھر کے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک بھی تحریک پوری دنیا میں ایسی نہیں ہے جو تحریک اس قوم کی اسی قوم کے لیے ہو, بلکہ ان کی ساری تحریک سارے موومنٹ سارا یوجنا صرف مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ مسلمان صرف آج ایک طرح سے نام کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں. ان کا ایمان چیک کیا جائے نہیں, عقیدہ چیک کیا جائے سب سے کمزور, ویوہار چیک کیا جائے سب سے کمزور, عمل دیکھا جائے سب سے کمزور. ہم نے کس اعتبار سے ہمیں چاہیے دولت؟ ایمان کی دولت. ہمارا عمل اچھا ہوگا تو ایمان کی دولت حاصل ہوگی. عمل کیسا؟ ہم مسلمان ہیں ہمارا بیٹا شرابی ہے. ہم مسلمان ہیں ہمارا بیٹا بے نمازی ہے. ہم مسلمان ہیں ہمارا بیٹا ظالم ہے. ہم مسلمان ہیں ہمارے گھر میں نماز نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں ہمارے گھر میں اسلامک ماحول نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر یہ شراب کہاں سے آ گئی ہماری آنگن میں؟ ہم مسلمان ہیں تو یہ سود کے بازار ہمارے معاشرے میں گرم کیوں ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے بچے ہی شراب پیتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سود کھاتے ہیں, لیکن اگر کسی ایک مسلم معاشرے میں ایک بچہ اگر سود خور ہو, ایک لڑکا اگر شرابی بن جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی شراب پینے کی نحوست یا اس کے جوا بازی کی نحوست سے پورے معاشرے کو اس کو متاثر ہوگا وہ, اور پورا معاشرہ اس سے نیچے حیثیت سے دیکھا جائے گا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دل پہ نہ لیں, مگر ہمارا آج معاملہ کیا ہے؟ ہر طرح سے سودخوری ہو تو مسلمان کا بچہ, جوا بازی ہو تو مسلمان کا بچہ, شراب ہو تو مسلمان کا بچہ. صاحب ایک مسلمان جب شراب پیے گا تو ایمان کی برکتیں اور بہاریں ان کے آنگن میں نہیں آئے گی. وہ شراب جسے ام الخبائث کہا جاتا ہے, وہ شراب جسے بنیادی طور پر غلطی کرنے کا سب سے بڑا کارن اور ریزن سمجھا جاتا ہے, وہ شراب جس کی خوراک کی وجہ سے ایک آدمی بڑی سے بڑی غلطی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے, وہ شراب جس کو ام الخطا کہا جاتا ہے, وہ شراب اگر مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے بچے پیئیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں مسلمان کا بچہ ہوں. اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی شراب کی بوتل اس کی آنگن میں ملے, اس کی الماری میں ملے, اس کے معاشرے میں بکے, اس کا سامان میں شراب بیچی جائے, تو پھر کیا کرنے کے مسلمان ہے؟ اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے
ताकि शराब को मिटा दिया जाए। इस्लाम दुनिया में इसलिए आया है ताकि जुए को मिटा दिया जाए। इस्लाम इस दुनिया में इसलिए आया है ताकि सूदखोरी का खात्मा हो जाए। मगर जब मुसलमान ही जुआबाज हो, मुसलमान ही सूदखोर हो, मुसलमान ही शराब पिए, तो आप समझिए कि एक शराबी वो जानी भी हो सकता है, शराबी जालिम भी हो सकता है। शराब पीने वाला जुल्म पर आमादा हो जाता है, क्योंकि शराब जब पीता है आदमी उसके आप को अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाता। शराब पीने वाला बीवी को मारेगा, शराब पीने वाला बहन को मारेगा, शराब पीने वाला समाज को आग लगाएगा, शराब पीने वाला अपने समाज में झूठ बोल सकता है, शराब पीने वाला वो खुद को अनकंट्रोल महसूस करके बीवी को बात बात पर मारना, पीटना, गाली देना। मैं कहता हूं साहब इसको बंद किया जाए, इसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जाए, वरना ये हमारा माशरा उजड़ जाएगा। हर तरफ से शराबी और शराब पीने वाले नजर आएंगे, फिर कोई किसी का एहतराम करने वाला नहीं होगा, क्योंकि शराब पीने वाला नमाज छोड़ देगा, शराब पीने वाला बड़ी से बड़ी गलती बहुत आसानी से करेगा। एक बुजुर्ग जिसने हजारों नमाजें पढ़ी, उस बुजुर्ग को किसी ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद एक कमरे में बंद किया, उस कमरे में एक चाकू रखी गई। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। वो बुजुर्ग जो नमाजी है, जो आबिद शबे जिंदादार है, जो साहिब यानी हमेशा रोजा रखने वाले, हमेशा नमाज पढ़ने वाले, मुत्तकी परहेजगार नमाजी बुजुर्ग, उसको पकड़ के किसी ने रूम में बंद किया और उन्हें चाकू दिखाया। बोला है बुजुर्ग इंसान, मैं तेरी जबान काटना चाहता हूं, मैं तेरी गर्दन मारना चाहता हूं, मैं तेरा हाथ काटना चाहता हूं, मैं तेरी टांग काट लूंगा, मगर अगर तू चाहता है कि तू बच जाए तो तेरे पास में 3 ऑप्शंस है बचने के लिए। ये देख, ये चाकू देख रहा है ना, कहा मैं देख रहा हूं। ये बच्चा देख रहा है ना, कहा मैं देख रहा हूं। ये शराब देख रहा है ना, हाँ मैं देख रहा हूं। ये खातून देख रहा है ना, हाँ मैं देख रहा हूं। यानी एक ही कमरे में वो बुजुर्ग है, उसी में एक 18 साल की उसी समाज की एक बच्ची को रख दिया गया, और 18 साल की बच्ची और एक 6 महीना का बच्चा, 2 और एक शराब की बोतल, 3, ये 3 चीजें रख देने के बाद उनसे कहा गया अगर तू चाहता है कि तू बच जा तो तू इन तीनों में से कोई एक गलती कर, या तो तुम इस बच्चे को कत्ल कर दे, या तुम इस लड़की के साथ गलत कर दे, या फिर तेरे लिए ऑप्शन ये है कि तू शराब पी ले। उसने अपने आप को मुताला किया कि मैं कौन सी गलती करूंगा। जैसे उसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा, करीब से करीब तर था कि वो उस बच्चे के ऊँट के सीने पे चाकू भोंककर उसकी हत्या करता। अंदर से आवाज आई, नहीं ये बच्चा छोटा है, ये बच्चा इनोसेंट है, ये बच्चा खताकार नहीं, ये बच्चा अभी सही से दुनिया देखा नहीं, तू क्यों चाकू से इसकी हत्या करेगा, इसकी जान लेगा। अरे जब यहाँ दूसरा ऑप्शन तेरे सामने मौजूद है तेरी जान बचाने के लिए, तो तू क्यों किसी की जान लेगा। इसलिए बच्चों की जान लेने वाला जो ऑप्शन था उसने उसे त्याग देकर एक कदम आगे बढ़ाया, बोला छोड़ो बच्चे को नहीं मारना है, आगे देखता क्या है। वो लड़की हसीना जमीला उसके सामने खड़ी है, वो सोचा चलो इसके साथ ही गलत व्यवहार कर देते हैं, इस लड़की के साथ गलत करेंगे मेरी जान बच जाएगी, वरना ये लोग सामने वाले मुझे मार देंगे। उसने जैसे उस लड़की के करीब अपने आप को किया और एक कदम आगे बढ़ाकर उसके बदन को टच करने की उसने प्रयास की ही थी, अब अचानक उसके अंदर ने झिझोड़ता हुआ उसे याद दिलाया, खबरदार ये लड़की किसी की अमानत है, ये बेटी किसी की इज्जत है, ये किसी की अमानत है, अगर तूने इसके बदन को टच किया तो अमानत में खयानत करने के जुर्म में तुझे बहुत बड़ी सजा मरने के बाद मिलेगी, इसलिए क्यों किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। उसने अपना दूसरा इरादा, लड़की के साथ गलत करने वाला जो इरादा था उसे भी उसने तर्क कर दिया, बोला नहीं इस बच्चे को भी नहीं मारना है, लड़की के साथ भी बदअखलाकी और बदतमीजी नहीं करनी है। अब दोनों ऑप्शंस को त्याग देकर चाकू रख दिया। अचानक उसने सोचा अब एक ही ऑप्शन बचा है, शराब पीने का ऑप्शन। मैं चुपचाप शराब पी लूंगा तो एक लड़की की इज्जत भी बच जाएगी और छोटे से बच्चे की जान भी बच जाएगी। इसलिए आसानी से उस बुजुर्ग ने अपना फैसला ये किया कि मैं शराब पी लूंगा तो 2 तरह से बड़े गुनाह करने से बच जाऊंगा। शराब पीने का जो नुकसान होगा तो मुझे होगा, जो गुनाह होगा तो अकेला मुझे होगा, मगर इससे किसी की जान पर कोई खतरा नहीं, किसी की जान पर, किसी की इज्जत पर कोई खतरा तो नहीं हो सकता है। वो आसानी से ये फैसला किया, शराब की बोतल पकड़ा, ढक्कन खोला, मुंह में उड़ेल दिया, जैसे पूरी बोतल वो अपने पेट में डाला, थोड़ी देर के बाद मदहोशी छा गई, होश गंवा बैठा। अब वो नवाजी
आबिद शबे जिंदादार, वो शायद मुत्तहर बुजुर्ग जिन्होंने हमेशा रोजा रखना, नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, चाश्त पढ़ना, इशराक पढ़ना, नमाज पढ़ना, अल्लाह से डरना, जिनकी जिंदगी का नस्बुल ऐन बन चुका था, वो बुजुर्ग जब अपनी जान बचाने के लिए 3 ऑप्शंस में से लास्ट ऑप्शन शराब पीने वाला जो ऑप्शन था, उसने जैसे शराब पिया, अभी से कुछ देर पहले जिस बच्चे की जान को वो छोड़ा था मारने के लिए, चाकू उठाकर उसकी पीठ में खोद दिया, उसकी भी हत्या कर दी। वो शहजादी जो खड़ी थी उसके साथ वो दुर्व्यवहार किया। क्या पता चला, एक ढक्कन शराब एक आदमी को कातिल बना देती है, एक ढक्कन शराब एक इंसान को जालिम करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए साहब, हम अपने माशरे को सबसे पहले शराबियों से अलग कर दे। हमारा बेटा शराब नहीं पिएगा, ये कहना बड़ा आसान है हजरत, बेटा मेरा मानता नहीं है, मैं समझाता हूँ, बेटा समझता नहीं है। मैं कहता हूँ साहब, आप गार्जियन है, ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। आपने पैदा किया इसे और आपका बेटा आपकी बात नहीं मानेगा, मान लेगा। जिस दिन आप ठान लेंगे कि मेरा छोटा भाई शराब नहीं पिए, मेरा बेटा शराब नहीं पिए, उसी दिन से आपका बेटा कभी शराब नहीं पी सकता। मैं चैलेंज देकर कह सकता हूँ, आप कसम खा लीजिए कि अब मैं अपने बेटे को सुधार के रखूंगा। सुधरेगा कैसे? मौलवी साहब की तकरीर से नहीं, पीर साहब की ताबीज से नहीं, इमाम साहब के खिताब से नहीं, बल्कि बाप के डंडे से, माँ के खौफ से, बड़े भाई के डंडे से। हर बड़ा भाई, हर बाप कसम खा ले, डंडा हाथ उठा ले, जैसे पहला दिन शराब पीकर आपका छोटा बेटा घर आए, शराब तो दूर की बात है, अगर आपने सिगरेट और बीड़ी पीते वक्त अपने बेटे की गिरेबान पकड़ के, उसका कॉलर पकड़ के उसको चौराहे पे ले आइए और चौराहे पे लाकर अपनी जूती निकालकर, अगर आपने 10 लोगों के बीच, 10 समाज के बीच शराब नहीं, सिर्फ सिगरेट पीने की गलती पर अगर आपने 10 जूती उसके सर पे लगा दी, बोल और कभी पिएगा सिगरेट, और पिएगा, और शराब पिएगा, और बीड़ी पिएगा। जो बाप, जो भाई, जो दादा, जो चचा अपने बेटे को पीठ चौराहे पर सिगरेट पीने की सजा जूती मार कर दे देगा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जब तक वो बच्चा जिंदा रहेगा, शराब पीना तो दूर की बात है, वो खैनी और बीड़ी खाने से भी डरेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको सजा देनी पड़ेगी। आप ढील क्यों देते हैं? छोड़ो भाई, बच्चा है, गलती कर दिया, क्यों बच्चा गलती कर दिया? माँ सख्त बने तब माशरे में इस्लाह की उम्मीद हो सकती है। माँ दरवाजा नहीं खोले जब बेटा शराब पी के आए। बेटा पोता कोई भी हो, जिम्मेदारी आपकी है, आप खुद इसको कंट्रोल करेंगे। आपको जब कंट्रोल आप करेंगे, इसका एक खातिर खास रिजल्ट आपके माशरे में दिखाई देगा। वरना अगर आपका बेटा शराबी होगा तो घर उजड़ जाएगा, आपकी बहू को मारेगा, आपकी बेटी को मारेगा। कितने घर उजड़ गए, बीवी अलग भाग गई, बेटी अलग भाग गई, बेटा तलाक दे दिया, कहीं खौला की बात, कहीं तलाक की बात, कहीं साफ रुखसती की बात, कहीं छोड़ने की बात, कहीं डाइवर्स की बात, कहीं कचहरी की बात। ये सब क्यों आते हैं? बस वही नशा, वही पीना, वही खाना, वही मदहोशी। हम लोगों के पास हफ्ते में 2-4 फोन कॉल्स इस नाम से आते हैं। लोग बोलते हैं हजरत, अरे क्या बताया हजरत, मेरा बेटा शराब पिया हुआ था और शराब पीने की हालत में उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। सुनिए मसला, शराब पीने से तलाक होती है कि नहीं होती है? सुन लीजिए, सुना दो ना। जी जी। आप सोचते होंगे कि भैया शराब पीने से क्या हो सकता है। मैं कहता हूँ भैया, हमसे अगर कोई मसला पूछता है तो इसका जवाब मैं उसी शिद्दत से देता हूँ जिस शिद्दत से वो सवाल पूछता है। अगर कोई शराब पिया है, होश में नहीं है, और उस हालत में अगर वो तलाक देगा तो तुरंत तलाक हो जाएगा। जी जी, बेशक बेशक बेशक, तलाक हो जाएगी, नहीं तुरंत हो जाएगी, फौरन हो जाएगी। जी बिल्कुल जी। आप कहिएगा हजरत तो आप तो उल्टा बता दिए, वो तो होश में है नहीं। ये बताइए, वो होश में कैसे नहीं है? उसको कैसे पता चला कि ये मेरी बीवी है? जी बेशक 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 हजरत, बेशक बेशक। माँ को तो तलाक नहीं दिया, बहन को तो नहीं दिया, नहीं, तो इतना होश है ना उसको कि ये मेरी बीवी है और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तलाक है। जी 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 इतना जी होश है तो बेहोश कहाँ है वो? जी। इसलिए ऐसा मसला पूछिएगा भी मत कि अगर शराब पीने की हालत में अगर तलाक दे दे तो क्या तुरंत, इससे पहले कि तलाक की नौबत आए
बेटों को सुधार लीजिए वरना माशरा उजड़ जाएगा। जी 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 कमाएंगे नहीं, कमाएंगे तो बरकत नहीं होगी। भीख मांगने, पैसा मांगने, चोरी करने, डकैती करने सब आदत लग जाएगी अगर आपने शराब में सबसे माशरे को अलग नहीं किया। बड़े लोग शराब पीते हैं, छोटे लोग शैंपेन, वो कौन सा नशा आता है ना आजकल, प्लास्टिक में भर के वो पंचर बनाने वाला जो सामान मिलता है उसको क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या वो निकल गया, सब कचरा से निकलने वाली चीजें, वो सब बच्चे छोटे छोटे पीना शुरू कर दिए। मैं जानता हूँ पीता है बाबू, तो लोग तभी तो बोल रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, वो नहीं पीना चाहिए, और अगर नहीं मानेगा तो लोग, तो हम लोग को डंडे उठाने पड़ेंगे, उजड़ जाएगा, तेरे फेफड़े सड़ जाएंगे। पूज्य मौलाना जावेद हसन साहब के गुलामजदी, हमारे इलाके का एक साहब वो अभी 2 महीने से बिल्कुल गरीब आदमी, मगर चुपके से वो पता नहीं कब वो जो कॉलेज की टॉयलेट से क्या आता है, कौन सी सीरप आती है, वही वो पिया करता था। उसका लीवर और पेनक्रियास दोनों खत्म हो गया। अल्लाह 35 साल की उम्र में गरीब आदमी वो पूरी प्रॉपर्टी बेच देगा, अपना बच्चा बेच देगा, सब कुछ बेच देगा, उसके बाद भी इतना खर्च बता रहा है डॉक्टर कि वो इलाज नहीं करा पाएगा। अल्लाह अब क्या होगा 4 बच्चों का, 4 बच्चे जो उसके पीछे, उसका क्या होगा, उसकी जिंदगी खराब होगी। जी, जी। इसलिए आप अपने बच्चों को पहले ही संभाल लें ताकि आने वाले जमाने में हमारे बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए। हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्यों बिना वजह जा रही है, अब तो मैं इन्हीं के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। हम लोगों ने अपने माशरे में अपनी बेटियों को जो देखा है, सबसे ज्यादा अपने माशरे में अपने घर को बर्बाद करने में हमारी माँ का है। हमारी माँ ने छूट दे दिया, बेटी को अलग, बेटा को अलग, मोबाइल ले लेके सोना बिस्तर पे। अक्सर और बेशतर घर से ये शिकायत मिल रही है कि हजरत, एक बिस्तर पे सोने वाली माँ और उसी बेडशीट पर सोने वाली उसकी बेटी, माँ और बेटी दोनों एक ही साथ सो रहे हैं। बेटी पूरी रात बात कर रही है फोन कर, माँ को पता है कहाँ बात हो रही है, माँ को पता है मोबाइल किसने दिया, माँ को पता है मिस कॉल किसने मारा, मगर माँ नहीं बोलती है। बोलेगी कब, जब बेटी भाग जाएगी, उसके बाद माँ आएगी मौलाना साहब के पास कि हजरत, मेरी बेटी को किसी ने कुछ खिला दिया, उसका दिमाग को घुमा दिया और उसको लेके भाग गया। अरे भैया, कुछ खिलाने पिलाने से कोई किसी का दिमाग को इधर उधर नहीं करता है। कोई ताबीज ऐसी है ही नहीं जो किसी का दिमाग को उल्टा पलटा कर दे। अगर ऐसी ताबीज होती तो हिंदुस्तान में 3 आदमी को हम लोग भी बहुत दिनों से उसका दिमाग घुमाना चाह रहे हैं। जी 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 वाह 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 वाह, बेशक इतना क्या परेशान इशारा है हम लोग, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। जी एक ताबीज तीनों के नाम पे हम लोग लिख के कहीं गाड़ देते, आराम से चैन की नींद सोते कि भैया चलो अब इसका दिमाग ऐसे घूम जाएगा। जी बेशक तो ताबीज से नहीं होता है। आपने गलती किया है, आपकी बेटी को आपने इतनी छूट क्यों दे दी, आपने आजादी क्यों दे दी, आपने क्यों नहीं पूछा अपनी बेटी से मोबाइल कहां से लाई। अगर आपकी बेटी के हाथ में मोबाइल है, आपने ही दिया है, तो आजकल कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनका बाप उनसे पूछता है कि मेरी बेटी 1 साल से मैंने तेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं किया है, तेरा मोबाइल रिचार्ज कौन करता है? पूछते हैं हम। ना तो हमने रिचार्ज किया, ना मेरा बेटा किया, तो बेटी का मोबाइल रिचार्ज होता कैसे है? वो जमाना तो चला गया कि आप 1 साल तक इनकमिंग आएगी। किसी का भी मोबाइल 28 दिन के बाद रिचार्ज नहीं करेगा तो 2-3 दिन के अंदर इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद हो जाता है। जी जी। और यहाँ 1-1 साल से मोबाइल चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाली बेटी को नहीं है, कोई मान तलब नहीं करती, पूछती नहीं कि कहां से मोबाइल आया था, कहां से चार्जर आया, कहां से सिम आई। अब उस दिन आंखें खुलेगी जिस दिन हमारी बेटी भाग कर शादी करेगी, उस दिन पूरे माशरे की इज्जत तार-तार होती है। फिर वो माँ रोती है कि हजरत मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत खाक में मिल गई क्योंकि मेरी बेटी भाग गई। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ, अगर आप ध्यान दोगे कि मेरी बेटी नहीं भागेगी, तो मैं कसम खा के कह सकता हूं कि आपकी बेटी भागना तो दूर की बात है, आपकी बेटी आपके आंगन के और आपके दरवाजे से आपकी इजाजत के बगैर कभी एक कदम उठाकर नहीं जाएगी। क्योंकि अगर आप इरादा बना लोगे कि मेरी बेटी नमाजी हो, मेरी बेटी इबादत गुजार हो, मेरी बेटी साहिबुद्दहर हो, मेरी बेटी हम नमाज पढ़े, क्योंकि बाप चाहेगा तो बेटा सुधरेगा, माँ चाहेगी तो बेटी सुधरेगी, वरना माँ और बाप दोनों खुद अयाशी करेंगे तो उसका गलत इंपैक्ट, गलत असर उनके बच्चों
بچوں پہ پڑیں گے. ماں خود قرآن نہیں پڑھتی ہے, بیٹی کیسے قرآن پڑھے گی؟ باپ خود قرآن نہیں پڑھتا تو بیٹا کیسے قرآن پڑھے گا؟ اس لیے آپ بھی نماز پڑھیں, آپ بھی قرآن پڑھیں, آپ بھی تلاوت کریں, ایٹومیٹکلی آپ کے بچوں میں وہ ساری چیزیں چلی جائیں گی. وہ صرف مارنے اور ڈانٹنے سے نہیں, جیسے اذان فجر ہو ترنت ماں اٹھ جائے, اٹھنے کے بعد ماں مصلی پکڑ وضو بنا لے, وضو بنا کر مصلی پکڑ لے, 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن ماں بھی نماز پڑھے, باپ بھی نماز پڑھے. میں دعوے سے کہتا ہوں جس گھر میں 10 دن تک گھر کے بڑے لوگ نماز فجر کی پابندی کریں گے, اس گھر کے سارے بچے 11ویں دن سے ایٹومیٹکلی نماز پڑھنا شروع کریں گے. جی بالکل. طریقہ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے اٹھیے, دادا لوگ اور اماں لوگ, آپ بیٹی کو پہلا دن بولیے اٹھ, آرام ہو گئے. اس دن بیٹی کی آنکھ کھلے گی, ڈر جائے گی, بولے گے 4 بجے کائیں اٹھا رہا ہے ہم کو. تو پھر دوسرا دن آپ اٹھائیے, اے نماز پڑھ. پہلا دن تو آنکھ کھلے گی اس کی, پھر وہ سو جائے گی. دوسرا دن ٹھیک 4 بجے آپ اس کو اٹھائیے, اے اٹھ نماز پڑھنے چل, تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گی, پھر سو جائے گی. تیسرا دن گئے, چل اٹھ نماز پڑھ, کلی کھول کے باہر آئے گی, جھانک سونگ لے گی, دیکھے کہ اماں پڑھ رہی ہے, پھر واپس چل جائے گی. ارے 4 دن 5 دن 7 دن, ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ مان لے گی کہ جیسے ہی 4 بجتا ہے امی ہم کو اٹھا دیتی ہے اور نماز پڑھنے کہتی ہے, تو چلو اب 11ویں دن سے وہ بیٹی کیا کرے گی کہ اب 11ویں دن خود بیٹی 4 بجے سے پہلے آنکھ کھول کر بستر پہ بیٹھی رہے گی کہ ادھر اذان فجر کی آواز گھر پہ آئے اور ادھر میں آج اپنی ماں کو جگاؤں کہ امی چلو اذان فجر ہو گئی, اب آواز. باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا نماز پڑھے گا, اور ایسی نماز پڑھے گا کہ بیٹا خود. میرا چھوٹا سا 7.5 سال کا لڑکا اپنے ماما کو میں نے کہتے سنا کہ ماما آپ تو رمضان سے پہلے بولے تھے کہ رمضان میں نماز شروع کروں گا, یہ تو 20 رمضان ہو گئی گزر گیا ہے, اب نماز آپ کہاں شروع, چونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا کب نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم مسجد میں پڑھتے تھے, گھر پہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا بیٹا میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, مسجد میں نماز جماعت سے نماز, چونکہ مسجد میں نمازیوں کی بھیڑ لگ جاتی نا, اس میں رمضان شریف میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد چھٹی, جی پھر 11 مہینے کے بعد پھر داخلہ. ایسا نمازی کہاں ملے گا؟ وہ تو شیطان بند رہتا ہے نا, اس لیے یہ لوگ جتنے بھی شیطان کے دوست ہیں سب مسجد میں رہتے ہیں. جیسے شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کو, سب دوست اپنے دوستوں سے مل جاتے ہیں. عید کے دن بھیا ظہر کے ٹائم پہ مسجد خالی تھی جی, عید کے دن امام صاحب اکیلے اذان دیے, نماز پڑھے گھر میں, وہی ایک دن پہلے مسجد بھر جاتی ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ خود ہی عبادت کریں, اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا. آپ جھوٹ بولیں گے بچہ جھوٹا ہوگا, آپ چوری کریں گے بچہ چور ہوگا, آپ غلط کریں گے بچہ غلط کرے گا, آپ نگاہوں کی حفاظت کریں گے بچے بھی نگاہوں کی حفاظت کریں گے. ایک بزرگ کا واقعہ میں اکثر سنایا کرتا تھا, بات ذہن پہ آ گئی, بس اس کے بعد میری تقریر آگے بڑھے گی. 18 سال کی بیٹی اور 80 سال کا باپ کا واقعہ. 80 سال کا باپ اور 18 سال کی بیٹی اس کے پاس ہے, دونوں بہت تنگ دستی کی زندگی سے دو چار ہو گئے ہیں. باپ کہیں کمانے نہیں جا رہا ہے, گھر میں جو خرچی تھی سب ختم ہو گئی. 1-2 مہینہ کے بعد گھر کی کوٹھی خالی, اب اناج نہیں, اب ماں گھر میں خوراکی نہیں, اب گھر میں راشن پانی نہیں. بیٹی پریشان ہو گئی, باپ سے کہتی ابا آپ مارکیٹ جائیے, کام کر کے لائیے. ابا کب تک ہاتھ ڈال کے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ ابا آپ کام نہیں کریں گے, آپ کی بیٹی کیا کھائے گی, آپ کی بیٹی کیا بنائے گی؟ باپ نے انتظام دیا, محلے نے دیا, اگل بغل سے اڑوس پڑوس سے جب تک دینا تھا سب لوگ دے کر کھلا پلا دیے. اب ہر آدمی اس کی مدد کرنا چھوڑ دیا. 3 دن ہو گئے ہیں, چولہے نہیں جلے, ہانڈی نہیں چڑھی, روٹی نہیں پکی, سبزی نہیں پکی. باپ پریشان بھوک سے, بیٹی پہ حال بھوک سے. اب بیٹی کہتی ابا اب آپ کو مارکیٹ کام کرنے جانا ہی پڑے گا. باپ کے پریشر پر باپ اپنی بیٹی کے پریشر پر مارکیٹ جانے کا ارادہ بنایا, کیونکہ باپ بھی ایک ایسی ذات ہے, باپ کی ذات جو کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں اپنی بیٹی کی ہر فرمائش کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جب کوئی اپنی بیٹی کی خواہش پوری نہیں کرتا اس وقت باپ آگے بڑھتا ہے. باپ بولتا ہے بیٹی میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں, بیٹی فریج چاہیے, بیٹی پنکھا چاہیے, بیٹی گاڑی چاہیے, بیٹی سائیکل چاہیے, بیٹی گھڑی چاہیے, بیٹی پیسہ چاہیے, بیٹی زمین چاہیے, بیٹی گھر چاہیے. 80 سال کی عمر میں بھی باپ کے یہ حوصلے ہوتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر لوں مگر میری بیٹی کی آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو کا میں بہنے نہیں دوں گا. یہ ہمارے حاجی صاحب جو نعت شریف پڑھ رہے تھے ابھی اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں, پھر یہ تشریف لائیں گے.
आएंगे शायद मुमकिन है जरूरत पूरी करके। मेरी गुफ्तगू आप सुने मुकम्मल तौर पे मैं एक एक करके सारी बात बता रहा हूँ। अब वो दोनों आदमी, दोनों बाप बेटी परेशान, बाप को बेटी ने झोला पकड़ाया, मार्केट भी चला गया, मार्केट में सुबह से शाम तक घूमता रहा, मार्केट में काम करने की तलाश में घूमता रहा, चक्करे काटता रहा, घूमता रहा, चक्करे काटता रहा। शाम हो गई, नाकाम बूढ़ा वापस घर की तरफ बढ़ा है। बेटी शाम होते ही दरवाजे पर खड़ी है, इस उम्मीद के साथ कि अब्बा झोली भर के सामान ला रहे होंगे, चावल ला रहे होंगे, आटा ला रहे होंगे, सब्जी ला रहे होंगे, और आज मैं खाना पकाकर खाऊंगी और दिल खोल के आज नमाज पढ़ूंगी। जैसे ही बाप शाम होते ही दरवाजे पर आया, बेटी दरवाजे पर खड़ी अपने बाप की आमद का इंतजार में आंखें तक रही, आंखें खोलकर बाप के आमद के इंतजार में खड़ी है। बाप जैसे दरवाजे पे खड़ा हुआ, बेटी की निगाह बाप की निगाह से बाप में टकराई। बेटी ने अपने बाप के हाथ से लगी खाली झोली को पहले देख लिया। अब्बा आपकी झोली खाली है, आपने काम नहीं किया, आपने सब्जी का इंतजाम नहीं किया, अब्बा आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया, तो अब आपकी बेटी क्या खाएगी, कैसे रात गुजारेगी, कैसे मैं सोऊंगी, अब्बा मेरे दिन कैसे कटेंगे। बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, कमरे में ले गया, इशारा दिया, मेरी बेटी खामोश रह, मेरी बेटी सब्र कर ले, ए मेरी बच्ची तू सब्र कर, अगर तू सब्र करेगी तो अल्लाह तेरे सब्र का बेहतर बदला अल्लाह कल अता फरमा देगा। आज झोली खाली है तो क्या हुआ, कल अल्लाह झोली भर के देगा। बेटी तू सब्र कर ले, बेटी तुझे रात गुजारनी है, और मैं बताता हूँ कि रात तेरी कैसे गुजरेगी। कल रात तूने अगर 4 रकात नमाज़ नफल पढ़ी, आज 8 पढ़ते तेरी रात गुजर जाएगी। कल 12 पढ़े थे, आज 16 पढ़ते तेरी रात गुजर जाएगी। कल तूने 2 रकात नमाज़ 2 पारे कुरान पढ़े, आज 5 पारे पढ़ते तेरी रात गुजर जाएगी। अब देखिए, अंदाजा लगाइए, बाप भूखा है, बेटी भूखी है, होना तो ये चाहिए था। बाप कहता जाओ बेटी आराम से सो जाओ, सुबह खाना खाओगी तब नमाज पढ़ना, भूख से कौन नमाज पढ़ेगा, भूख लग गई बेटी छोड़ दो, अब क्या नमाज पढ़ोगी। लेकिन नहीं, बाप ने ये नहीं कहा कि छोड़ दो नमाज, बल्कि कल रात से जायद नमाज पढ़ने की बात बाप आज रात में अपनी बेटी से कह रहा है कि आज कल से ज्यादा इबादत कर, कल से ज्यादा कुरान पढ़, कल से ज्यादा तिलावत कर, कल से ज्यादा तू अल्लाह को याद कर। अब बेटी अपने बाप के बात पर अमल करती रही, पूरी रात कुरान पढ़ती रही, नमाज पढ़ती रही, कुरान पढ़ती रही। फिर अज़ान फज्र हुई, बेटी नमाज पढ़ी, बाप नमाज पढ़ा, बेटी ने अपने बाप को फिर झोली दी, अब्बा आज जाइए मार्केट, आज जाइए बाहर हाट बाजार, कहीं से काम करके कुछ पैसे का इंतजाम करके रोटी दाल चावल सब्जी का इंतजाम कीजिए। बाप फिर अपनी बेटी की बात पर मार्केट गया, फिर दूसरी सुबह मार्केट गया, शाम तक मार्केट की चक्करें काटता रहा, घूमता रहा, कहीं कोई काम नहीं मिला। वापस फिर आया, फिर बेटी वही सवाल की, फिर बाप वही जवाब दिया। लगातार 3 दिन तक क्या वो बेटी कहती रही अपने बाप से, और बाप भी जाता रहा, नाकाम वापस आता रहा। अब आखिर में बेटी लास्ट फैसला सुनाई और अपने बाप से कहती है, अब्बा ये आखिरी चांस है, ये लास्ट अल्टीमेटम है, आज आपको कहीं से भी दाल चावल का इंतजाम करना होगा, सब्जी का इंतजाम करना होगा। अब्बा अगर आज रात आपने इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी, कोई गलत कदम उठा लेगी। बाप डर गया, बाप सहम गया। चौथी सुबह नमाज फज्र के बाद बूढ़ा बहुत सुस्ती के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया मार्केट की तरफ। कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, कभी ऊपर ताक रहा है, कभी नीचे देख रहा है, हर तरफ मार्केट में घूमता रहा। कोई काम में दे दो, कोई काम में ले लो, कोई कुछ पैसे दे दो, कोई रोटियों का इंतजाम कर दो, मगर शाम तक वो बूढ़ा चक्करे काटता रहा, फिर भी काम नहीं मिला। अब वो वापस घर की तरफ बढ़ा है, लेकिन बेटी गुस्से में लाल पीली बेटी दरवाजे पर खड़ी इस बात के लिए इंतजार में है कि आज अगर अब्बा झोली भर के सामान नहीं लाएंगे, आज दाल चावल का इंतजाम नहीं करेंगे, तो मैं कोई गलत काम कर बैठूंगी, मैं इसके लिए आगे बढ़ जाऊंगी। मगर होना क्या था, बाप जैसे दरवाजे पे आया, अब अभी बेटी कुछ पूछने ही वाली थी कि बाप जवाब देने से पहले दरवाजे के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। जवान बेटी 18 साल की उम्र में अपने 80 साल के बूढ़े बाप को दरवाजे पर ताकती हुई तड़पता हुआ देखी। वो बेटी उसको देखा नहीं गया। बेटी कहती है, अब्बा क्या हो गया, अब्बा क्या हो गया, अब्बा आप अपनी आंखें तो खोलिए। बेटी घबरा गई, बेटी समझ गई 4 दिन से मेरा बूढ़ा बाप मार्केट काम के लिए जा रहा था, वापस आ रहा था, बुढ़ापे की हालत में मार्केट पैदल जाना, पैदल वापस आना,
बुढ़ापे की कमजोरी अलग, 3-4 दिन से भूख की कमजोरी अलग, उसके बाद पैदल जाने आने की कमजोरी अलग, चौतरफा कमजोरी और साफ परेशानी की बुनियाद पर बेटी फैसला कर गई कि मेरे अब्बा बेहोश हो गए। अब क्या करना था? बेटी ने अपने दोनों हाथों को बाप के हाथों से सटाया और उसके दोनों बगल को खींचता हुआ वो बेटी अपने बाप को अपने कमरे में ले गई और उसके बाद बेटी कमरे में उसी हुजरे में रख दी और पूरी रात सोचती रही कहां से सब्जी आए, कहां से दाल आए, कहां से चावल आए, कहां से आटा आए, कहां से रोटी आए, कहां से गल्ला आए, कहां से अनाज आए, कहां से खाना पकाऊं। बेटी समझ गई कि अब्बा भूख से मरने के करीब हो गए हैं। अगर मैं हाथ पे हाथ डालकर ऐसे ही घर पे बैठी रहूंगी तो मेरा बाप भूख से दम तोड़ देगा, मेरे बाप की जान निकल जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा। अब वो बेटी फैसला क्या करती है? निकाब पहन ली, अपने चेहरे को ढाक ली, दरवाजे पर आई, देखी कोई देखता नहीं है, छलांग मार दी, चली गई मार्केट के मेन गेट के सामने खड़ी हो गई। इरादा क्या की है? मैं जाती हूँ मार्केट। वहां गई और उसके बाद उसका इरादा क्या था कि मैं अपने दुपट्टे को खोल दूंगी, मार्केट के सामने मेन दरवाजे के सामने खड़ी रहूंगी। हजारों लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उन हजारों लोगों में कोई तो होगा जो मेरा चेहरा देखेगा, कोई तो होगा जो मेरी नाक से मुतासिर होगा, कोई तो होगा जो मेरी आंख से प्रभावित होगा, कोई तो होगा जो मुझे देखकर मेरे करीब आएगा और मैं उनसे अपने हुस्न के बदले तो 4 पैसे मांग लूंगी और उसी पैसे से मार्केट से रोटी खरीद कर अपने बाप को खिलाकर बाप को मरने से बचा लूंगी। इसी इरादे से बेटी मार्केट गई है। उधर क्या हुआ? जैसे फजर की अजान हुई, बाप की आंख खुल गई, होश में आया, देखता क्या है? बेटी घर में है नहीं, घबरा गया, पड़ोस में तलाश किया, कहीं बेटी नहीं मिली। अब वो बूढ़ा रोते बिलखते चिल्लाते पछताते परेशानी की हालत में अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जिस कमरे से हमेशा वो कुरान पढ़ा करता था, जहां नमाज पढ़ा करता था, उसी कमरे में दाखिल हुआ, अपनी पेशानी को सजदे में रखा और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे गरीब बनाया, मैं गरीब हूं अल्लाह, मुझे अपनी गुर्बत पर फख्र है, मगर ये परवरदिगार, तूने इस गरीब को हालत गुर्बत में एक 18 साल की जवान बेटी की दौलत से तूने इसे सरफराज फरमाया था, मगर अल्लाह पता नहीं मेरी बेटी आज कहां चली गई, मेरी बेटी कहां भाग गई, मेरी बेटी किधर चली गई। ए अल्लाह, मैंने अपनी पूरी उम्र में अगर 1000 रकत नमाज पढ़ी है और उनमें से तूने एक रकत क्या अगर एक सजदा भी तूने कबूल फरमाया है तो अल्लाह उसी सजदे का वास्ता, उसी नमाज का वास्ता, उसी पेशानी को तेरी बारगाह में रगड़ने का वास्ता, अल्लाह मेरी बेटी की इज्जत को बचा ले, मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा, मेरी बेटी की इज्जत को सुरक्षित फरमा। बाप अपनी पेशानी सजदे में रखकर अपनी बेटी की इज्जत की सुरक्षा के लिए अल्लाह से मुतालबा कर रहा था। इधर शाम होते ही दरवाजे से दस्तक की आवाज उन्हें सुनाई दी। बाप सजदे से सर उठाया, किल्ली खोला, देखता क्या है? सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। बूढ़ा बाप अपनी बेटी को देखते हुए कहता है, मेरी बेटी कहां भागी थी, बच्ची कहां चली गई थी? कभी आंख का बोसा ले रहा है, कभी रुखसार का बोसा ले रहा है, कभी पेशानी चूम रहा है और रो रो कर बूढ़ा कहता है, बेटी कहां गई थी, बेटी कहां भागी थी, बेटी वहां देखा मैं तुझे, वहां तलाश किया, पड़ोस में खोजा, कहीं नहीं मिली, बेटी कहां गई थी? बेटी अपने बाप को फिर कमरे में ले गई, कहीं अब्बा खामोश होइए, अब्बा अपने आप को संभालिए, मैं बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। बाप कहता है, बेटी जल्दी बता कहाँ गई थी। बेटी कहती, अब्बा आप ईमानदारी से बताइए, जब से आपने मुझे पैदा किया तब से कभी आपकी इजाजत के बगैर मैं घर से बाहर गई थी? बाप कहता, नहीं मेरी बच्ची, तूने कभी ऐसा काम नहीं किया। फिर बेटी कहती है, अब्बा मगर आज एक मजबूरी की बुनियाद पर मैं बाहर गई थी। बाप कहता है, मेरी बेटी वो कौन सी मजबूरी? बेटी कहती है, अब्बा मैं देख रही थी 4 दिन से आप काम खोजने के लिए मार्केट जा रहे थे, आपको काम नहीं मिल रहा था, भूख से आप परेशान थे, आप बेहोश हो गए। अब्बा मैं समझ गई कि अगर मैं ऐसे ही घर पर बैठी रहूंगी तो भूख से आप भी तड़प के जान दे देंगे, मैं भी मर जाऊंगी। अब्बा मैं मार्केट गई थी,
बाप बोला मकसद क्या है बेटी जल्दी बता। बेटी कहती है मैंने इरादा किया था मार्केट जाऊंगी, गेट पे खड़ी होंगी, निकाब की पट्टी खोलूंगी, चेहरा दिखाऊंगी, एक दो आदमी भी मेरे करीब आएंगे, दो चार पैसा मांगूंगी, उसी पैसे से मैं अब्बा रोटी चावल का इंतजाम करूंगी। गैरतमंद बाप, नमाजी बाप, इबादत गुजार बाप, सामुत्यार बाप, अल्लाह से डरने वाला एक गरीब बाप ने जब सुना कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई थी, उस बाप की आंखें भर आई, चीख निकली। बेटी से बाप कहता है मेरी बेटी जल्दी बता कितने लड़कों ने तेरे बदन को टच किया, किन किन लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया। ए मेरी बच्ची जल्दी बता किन किन लोगों ने तेरे बदन को छुआ। बेटी कहती है अब्बा अल्लाह की कसम मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर ए अब्बा खुदा की कसम मार्केट के जिस दरवाजे के सामने मैं सुबह जाके खड़ी थी, शाम तक मैं उसी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। अब्बा मेरा बदन कोई क्या टच करता, मेरा बदन कोई क्या छूता, मुझे कोई क्या इस्तेमाल करता। अब्बा मैंने हजारों को आते देखा, हजारों को जाते देखा, मगर किसी ने मेरी तरफ ताका तक नहीं, किसी ने मुझे गलत निगाह से देखा तक नहीं। बाप कहता है मेरी बच्ची कैसे तुझे कोई गलत निगाह से देखेगा, क्योंकि मैं तेरा पूरा बाप आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात क्या समझ में आई? अगर हम दूसरे की बेटी को बचाएंगे तो अल्लाह हमारी बेटी को गैर से बचा देगा। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। हम दूसरे की बच्ची की इज्जत को समझेंगे, दूसरे की बहन की इज्जत को समझेंगे तो अल्लाह हमारी बहन की इज्जत की मुआवजा फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उनकी बहन बेटी को छेड़े और हमारी बहन बेटी बच जाए, मुमकिन नहीं है। बचने की एक ही सूरत है मेरे बच्चों, नौजवानों, एक ही सूरत है, आप दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करें। वो आपके समाज की किसी की बच्ची है, वो आपके माशरे की है, कोई आए अपनी निगाहें नीची कर ले, आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे कि आपकी शराफत की बुनियाद पर, आपके अच्छे होने की बुनियाद पर इसका ज़्यादातर असर आपके बच्चों में जाहिर करेगा। फिर आपके बच्चे बिन बताए नेक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत पहला पैगाम। दूसरा पैगाम, हमारे इलाके और इस माशरे में शौहर और हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है ना, ये आजकल इसकी इज्जत और इसकी अहमियत बहुत हद तक कम हो गई है। जी 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 जी। मियाँ बीवी के तालमेल सही नहीं होंगे तो बच्चे भी हो जाएंगे। समझ गए? मियाँ बीवी का क्या होता है साहब? शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी से बेपनाह तरीके से मोहब्बत करे। सुनो, आपके लिए कह रहा हूं, मोहब्बत करना सिर्फ माँ के लिए जरूरी नहीं, माँ से जरूरी नहीं है। आपने सुना है कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत है? सुना है? सुना भैया? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ माँ के कदमों ही के नीचे अल्लाह की जन्नत है तो चलो माँ राजी तो दुनिया राजी और बीवी को मारते रहो, लतियाते रहो। नहीं, माँ भी खुश रहे, बीवी भी खुश रहे। जी। बीवी है आपकी बीवी, अगर आपकी बीवी नाराज हो जाएगी घर में बरकत नहीं आएगी। हमारे इलाके में अक्सर ये माहौल देखा गया कि आदमी बीवी से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता है कि चलो ये हमारे बच्चे की माँ है। नहीं, वो आपके खानदान को आगे बढ़ने का जरिया है। सरकार दो आलम 11 बीवियों के सरकार और सरकार के हुजूर, और आपने अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत की है। इस्लाम में सिर्फ माँ से मोहब्बत नहीं है बल्कि बीवी से भी प्यार है, बीवी से मोहब्बत है। अगर आपने माँ की मोहब्बत को हासिल करने के चक्कर में बीवी को नाराज कर दिया या बीवी के चक्कर में माँ को नाराज कर दिया तो तब भी आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आपकी बीवी भी राजी रहे, आपकी माँ भी राजी रहे। बीवी से मोहब्बत और प्यार, खास करके नौजवानों में क्या देखा जाता है, बुजुर्गों में, अभी नई नई शादी होती है ना हमारे यहाँ, तो बूढ़ा लोग जो है उनको बहुत तकलीफ होती है। ए पंचायती कर रही बैठ के सुनो, नई नई शादी होती है ना तो बहू को बहू बोलता नहीं, इधर बहू बोलता है ना, जी जी। पतो बोलते हैं ना, हाँ जी। पुतोह को जो बूढ़े लोग है ना, पुतोह और बेटा को एक साथ बैठ के खाना खाने देखना नहीं चाहता है। गलत बोल रहा हूं? एक हफ्ते के बाद अगर कोई अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खा ले, थोड़ा हंस ले, थोड़ा मुस्कुरा ले,
एक घंटा कमरे में ज्यादा देर रह जाए तो दोनों आदमी, घर की बुढ़िया तो ज्यादा, बुढ़िया बोलती है अरे मेरा घर चला गया, बर्बाद हो गया, अब मेरा घर नहीं संभलेगा, ये कहाँ की डाइन आई हमारा बेटा को कब्जा कर लिया। अरे सबसे बड़ी डाइन तो तू है, तू शादी कराई क्यों थी? सामान चाहिए बराबर, पलंग चाहिए अच्छा, गाड़ी अच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, और उसकी बेटी जो बेचारा गरीब आदमी जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी दिलाया, उसकी बेटी से कोई मोहब्बत नहीं। सुनो, बीवी अगर आपकी है तो 100% आप अपनी बीवी से मोहब्बत करें और कोशिश करें अगर आप घर पे हो तो तीनों टाइम आप अपनी बीवी के साथ खाना खाएं। जी जी बिल्कुल। अरे कौन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी के साथ खाना खाओ बेटा, मोहब्बत बढ़ेगी, निकाह नहीं टूटेगा। कुछ लोग औरतें बोलती है कि बीवी के साथ खाने से निकाह टूट जाता है, बीवी का जूठा खाने से निकाह टूट जाता है। अरे अस्तगफुरुल्लाह, हुजूर ने बीवी से ऐसी मोहब्बत की है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर ने फरमाया, आयशा तुम पानी पी रही हो तो आधा पानी पीना और बचे हुए आधे गिलास पानी को मुझे देना। सुनिए सुभान अल्लाह। चचा लोग सुनिए, बीवी का जूठा खाना कितना सवाब का काम है, सुनिएगा उसे। अगर आपका बेटा भी आपका बेटा अगर आपके बहू के साथ खाना नहीं खाए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटे को पीटिए। अरे तू शादी करके आया ना इससे, ये तेरी बहू है ना, तेरी ये मेरी बहू है ना, तेरी बीवी है ना, तो तू क्यों अलग खाता है? जाओ दोनों आदमी एक जगह खाना खा। मां लोगों को चाहिए ऐसा करे ताकि मोहब्बत बढ़े, घर में प्यार बढ़े, और जब घर में प्यार बढ़ेगा ना घर में बरकतें आ जाएंगी। जी बिल्कुल, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये लोग देखना तक नहीं चाहते हैं बहू को और बेटा को एक साथ। ईद के दिन कितना बवाल हुआ इस बार, आपके यहाँ भी हुआ होगा, वो तो बारिश हो गई वरना तो बहुत आदमी तो जा ही नहीं पाया। ईद के दिन 10 बजे के बाद बच्चे लोग जो शर्म से डर से अपने माँ बाप को बोलते तक नहीं है कि हम कहीं जाने वाले हैं। भैया जाने दीजिए, नौजवान है वो, उनको बोलिए कि जल्दी सेवई तो वही खा और जा अपने ससुराल, जा अपनी बहू को ले साथ में जा। बेचारा इजाजत मांगता है माँ से बाप से, वो मुंह फुलाया हुआ, वो मुंह फुलाया हुआ है, वो मुंह फुलाया हुआ है। अरे भैया वो उसकी बीवी है, वो ले जाएगा नहीं घुमाने लिए तो दोबारा फिर जवान होगा क्या? वो अभी जवानी की उम्र है, उनको थोड़ा सा उनको अपने हिसाब से जीने दीजिए। आप जुल्म मत कीजिए उनके ऊपर। वो जितने आपस में जिस कदर उनमें मोहब्बत पैदा होगी उतनी आपके घर में बरकतें होंगी। जी जी बिल्कुल, बेशक। हुजूर ने क्या फरमाया, आयशा तुम पानी पी रही हो? कहा हुजूर, कहा आधा ही पानी पीना, आधा मैं पीऊंगा। सैयदा आयशा आधा गिलास पानी पी ली, बच्चे हुए आधे गिलास पानी को हुजूर की बारगाह में पेश की। सरकार नीचे पीजिए। गौर कीजिएगा, हुजूर उस गिलास को ऐसे करीब ले गए, अपने होंठों के करीब ले गए, अब बगैर पिए आपने गिलास को नीचे कर दिया, नहीं पिए, पानी छोड़ दिए। सैयदा आयशा डर गई, लगता है कि गिलास में कुछ गिर गया है क्या, पानी कम है या फिर साफ नहीं है क्या? सैयदा आयशा जब घबरा गई कहती, हुजूर आपने तो कहा था मुझे प्यास लगी है, तो मैंने आपके कहने के मुताबिक आधा ही पानी पिया, बचे हुए आधे गिलास पानी को मैंने आपको पेश किया। हुजूर आप पी क्यों नहीं रहे हैं? क्या तलाश रहे हैं? क्या कुछ गिरा है उसमें? सरकार फरमाते, आयशा घबरा